So we'll be just going live in another 60 seconds. I'll just share the presentation. Then we'll have a round of question and answers. I hope each and every one of you are doing well. And today on this weekend morning, I think everyone has having a great day. So am I audible to all? Can you just type in the text box and let me know? Am I audible to all? Right. I'll just share the presentation with each and every one of you. So today we'll be having some of the top book recommendations, and then we'll have a question and answer round. You can ask me any question that you want. Superb. So let's just start with it. So in today's session, we'll be having some of the SOIC top book recommendations, and apart from that, after listening to all the top recommendations, we'll be looking at some of the questions which are extremely interesting. So just a disclaimer that we are not SEBI registered advisors, and nothing in this presentation should be considered as an investment advice or a stock recommendation. So just coming to this, that Warren Buffett keeps on telling us that I'm a better investor because I'm a businessman, and a better businessman because I'm an investor. So basically, if you're a better businessman, so what means if you're a good businessman, then you can be a good investor. And if you're a good investor, so basically that means you can also be a good businessman, because both the things move hand in hand. This is what matters, because what happens at the end of the day is that if you think that business is what is important, so investing is just like if you think about business, that how you're doing business. Similarly, business is something just like investing, that if you're investing in a business, you're actually an investor. So if you think about it through both the ways, then आप बहुत अच्छे एक बिजनेसमैन भी हो सकते हैं और एक इन्वेस्टर भी हो सकते हैं. आई थिंक ये काफी अंडर अप्रिशिएटेड मेंटल मॉडल है. So just moving forward, so some of the book recommendations. So first book recommendation that we have is by the name of The Tao of Warren Buffett. The Tao of Warren Buffett. This is a book written by Mary Buffett and David Clark. So this is one of the most interesting books because इसमें एक बहुत simple चीज है कि in each and every page there is a key lesson of Warren Buffett's life. Suppose I'm just at page number 64, number 53 lesson, that we enjoy the proceeds far more than basically we enjoy the process far more than the proceeds. Though I've learned to live with those as well. If you hit a hole in one on every hole, you wouldn't play golf for very long. So basically, जो key lessons है उनकी investing journey के या investing philosophy के एक single quote में लेके एक single page पे explained है with 10 to 15 lines. It is a very interesting book, and इस book में एक अच्छी चीज क्या है कि it is very simple to read. आपको रात को सोने से पहले सिर्फ एक पेज पढ़ना है and उसके बारे में thinking करनी है before sleeping. That will slowly change your brain. I think this is a book जो मैंने last 3-4 years में 3 या 4 times reread करी है, and that actually ends up changing your psyche as well. It's a superb book, and I think just read one page a day before going to sleep and think about it. It can really change your life and investing life in the long run. So I think this is a superb book. So someone is asking the question and answer round कब होएगा? So just after the presentation we'll have a Q&A round. Right. Second book that we have is 100 Baggers. तो 100 Baggers एक ऐसी book है again जो आपको आपका एक जो psyche है through case studies. I think इस book के अंदर more than 70-80 case studies of 100 Baggers की जो foreign countries में 100 baggers बने स्टॉक, दैट इज इन्होंने वेल्थ 100x मल्टीप्लाई करी है.
तो उनमें क्या क्या कॉमन पैटर्न से एक्चुअली वो इंडिया में भी अप्लाई हो सकते हैं। तो इसकी इस बुक की हमने एक वीडियो भी बनाई थी हमारे चैनल पे। सो इस बुक की जो हमने वीडियो बनाई थी हमारे चैनल पे, आप वो भी देख सकते हैं। तो हमने बुक की जो लर्निंग है हमने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में लगाई है विद इंडियन केस स्टडीज, राइट। सो डू वॉच द वीडियो फॉर एप्लीकेशन इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। एंड द गुड थिंग विद टीचिंग थ्रू केस स्टडीज इज कि अगर हम अपने कोर्स की भी बात करें तो हमारा पूरा कोर्स इज टॉट थ्रू केस स्टडीज। कि जितनी भी केस स्टडीज है एक्चुअली उसमें पैटर्न रिकग्निशन होती है। जैसे अगर आज मैं पीआई इंडस्ट्रीज की बात करता हूँ तो पीआई इंडस्ट्रीज ऑलमोस्ट 300 बैगर है लास्ट 2 डेकेड्स में, आई थिंक 600 बैगर के आसपास लास्ट 2 डेकेड्स में। सिमिलरली जो डीवीज लैब है, डीवीज लैब भी 120 130 बैगर है। तो दोनों में क्या कॉमन पैटर्न्स थे वो आज भी अप्लाई कर सकते हैं। जो मैंने आपके साथ स्मॉल कैप क्रैम्स कंपनीज, स्मॉल कैप सीडीएमओ कंपनीज की बात करी है, उनके लिए सिमिलर पैटर्न्स अप्लाई हो सकते हैं क्योंकि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी सेम ही रहता है। तो आई थिंक ये केस स्टडीज करना काफी इंपॉर्टेंट रहता है कि किसी सेक्टर में अगर वेल्थ क्रिएट हो रही है तो उसका क्या रीजन है। आई थिंक ये 100 बैगर्स एक सुपर बुक है जो जो बेसिकली 100 बैगर्स एक सुपर बुक है जो आप जितनी केस स्टडीज है आप उसको कर सकते हैं। सो आई थिंक कंपाउंडिंग की भी आपको पावर एक्सप्लेन करेगा, पावर ऑफ कैपिटल एलोकेशन भी एक्सप्लेन करेगा। एंड इट्स अ वेरी वेरी सिंपल बुक टू रीड। मेरे को सिंपल बुक्स पढ़नी बहुत पसंद है क्योंकि कॉम्प्लेक्स बुक्स, जैसे अगर हम इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग की बात करते हैं, इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग एक्चुअली 50 to 60 ईयर्स पहले लिखी गई थी, आई थिंक 1940s 1950s में। तो उस टाइम के जो रेलिवेंस थी आज की रेलिवेंस नहीं है। तो आई थिंक ऐसी बुक्स आज के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा रेलिवेंट रहती है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में से भी 2nd या 8th चैप्टर के अलावा उस बुक की इतनी ज्यादा रेलिवेंस नहीं आज के कॉन्टेक्स्ट में। जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, थर्ड बुक दैट वी हैव इज आपकी खुद की हैबिट्स के लिए। तो आई थिंक एटॉमिक हैबिट्स इज अ सुपर बुक। तो इस बुक में एक बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है जो मेरे को आज भी काफी अच्छी लगती है कि यू शुड बी फार मोर कंसर्न विद योर करंट ट्रेजेक्टरी देन विद योर करंट रिजल्ट्स। सो बेसिकली ये बुक क्या हमें बता रही है कि आपकी जो आज की ट्रेजेक्टरी है वो आपको 3 या 6 महीने बाद पता लगेगा। सपोज करते हैं अगर आज मैं हर रोज पैटी या समोसा खाता हूँ, जस्ट एज एन एग्जाम्पल। सो बेसिकली जो मेरी ट्रेजेक्टरी है, मेरी ईटिंग हैबिट्स की ट्रेजेक्टरी इज बैड। तो मेरे को उसका जो रिजल्ट है वो आज से 3 या 6 महीने बाद पता लगेगा। एंड उसका जो हेल्थ पे मेरे रिजल्ट है वो मेरे को 1 या 2 साल बाद पता लगेगा। तो जो आज की आपकी ट्रेजेक्टरी है वो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सिमिलरली अगर मैं हर रोज मतलब फिटनेस एक्सरसाइज करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, या साथ साथ मैं अगर काफी जो ईटिंग हैबिट्स भी मेरी हेल्दी हो रही है, तो शायद से वो रिजल्ट मेरे को 6 या 9 महीने बाद पता लगेगा। शायद से जो मेरी बॉडी पे इम्पैक्ट है उसका 1 या 2 साल भी पूरा आएगा। तो जो आज की ट्रेजेक्टरी वो ज्यादा मैटर करती है एंड रिजल्ट से। सिमिलरली इन्वेस्टिंग में भी ऐसा ही है। तो एक चीज मैं क्या करता हूँ इन्वेस्टिंग में कॉन्शियसली कि डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज को जान पूछ के एक्सप्लोर करता हूँ। माने मैं बहुत सेक्टर एग्नोस्टिक हूँ, आप लोगों को लगता है कि मैं फार्मा या केमिकल एनालिस्ट हूँ, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैंने जब अपना करियर स्टार्ट करा था तो आई वाज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट। मैं बैंक्स एंड एनबीएफसीज और एचएफसीज को ट्रैक करता था। आज भी मैं बैंक्स, एचएफसीज एंड एनबीएफसीज को ट्रैक करता हूँ। पर साथ साथ मैंने क्या करा कि और भी डिफरेंट सेक्टर्स ऐड कर लिए। मैंने एक जो एफएमसीजी सेक्टर है वो भी ऐड कर लिया। बट एफएमसीजी सेक्टर में भी आई एम ट्राइंग टू लुक एट कंपनीज विच ग्रो फास्ट। जैसे टाटा कंज्यूमर की बात कर सकते हैं हम, जैसे जो रैडिको खायदान है उसकी हम बात कर सकते हैं। एंड साथ साथ जो इंटरनेट एंड प्लेटफॉर्म सेक्टर है वो भी मैंने ऐड करे है अपने सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में। देन फार्मा है, देन केमिकल है, एंड देन साथ साथ एंड में फाइनेंशियल स्टॉक्स है। एंड साथ साथ जो नीश कंपनीज है उनमें भी ध्यान रखता हूँ। तो बेसिकली जैसे जैसे मैं अपनी लर्निंग बढ़ाते जा रहा हूँ तो साथ साथ जो मेरी ट्रेजेक्टरी ऑफ सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है वो भी एक्सपैंड हो जाएगी आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम। आई थिंक दिस इज अ सुपर बुक विच ईच एंड एवरी वन ऑफ यू शुड रीड। चाहे आप इन्वेस्टिंग करते हैं चाहे आप इन्वेस्टिंग नहीं करते, बट आई थिंक आपकी जो हैबिट्स है दैट मेक्स अ मैन। एट द एंड ऑफ द डे इट्स नथिंग बट योर हैबिट्स विच मेक्स अ मैन। देन वी हैव अनदर सुपर बुक। आई थिंक अब एक प्रॉब्लम क्या है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में कि we get very few books on investing in the Indian context, but master class with super investors is one such book जो आपको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में सारी लर्निंग्स देती है।
सो इसमें आई थिंक जो हिरेन वैद का चैप्टर है, आई थिंक मिस्टर हिरेन वैद का चैप्टर है, केनिथ अंद्रादे का जो चैप्टर है, राजाशेखर अय्यर का जो चैप्टर है, गोविंद पारेख का जो चैप्टर है, एंड जो भारती जयंतीलाल पटेल का चैप्टर है, आई थिंक इट्स अ मस्ट रीड फॉर ऑल ऑफ यू। आई थिंक ये देयर इज नथिंग, मतलब ये जो 4-5 चैप्टर्स हैं, दे आर फुल ऑफ नगेट्स ऑफ विजडम। क्योंकि अगेन केस स्टडीज है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि सारी बुक्स वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट की, तो ऐसी जब केस स्टडीज मिलती है तो उनको पढ़ना जरूर चाहिए, राइट। तो आई थिंक ये 4-5 चैप्टर्स बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे जो केनेथ अंद्रादे का चैप्टर है, तो उन्होंने ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के लिए कंपनी ओन करी थी बाय द नेम ऑफ एमआरएफ। उसके पीछे क्या थिंकिंग थी एमआरएफ को 10 ईयर्स के लिए ओन करने के लिए, आई थिंक वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिमिलरली अगर हम हिरेन वैद की बात करते हैं, तो उन्होंने सिंजीन का इस बुक के अंदर पहले ही बता दिया था कि ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में आएगी, कि उन्होंने जो वूशी करके कंपनी है उसको ऑलरेडी पढ़ रखा था। सो आई थिंक अगेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड अगर हम राजाशेखर अय्यर की बात करें, सो ही मिक्सेस टेक्निकल्स विद फंडामेंटल्स, एंड उसको वो कैसे मिक्स कर पा रहे हैं, तो उसका पूरा केस स्टडीज है। मतलब आई थिंक ही आल्सो ओन्ड डीवीज लैब फॉर ऑलमोस्ट 10 to 12 ईयर्स। अगेन वो भी 100 बैगर से या फिर 60-70 बैगर से ज्यादा था इनके लिए। तो क्या इनके फ्रेमवर्क था वो हमें सीखना बहुत जरूरी है। देन गोविंद पारेख का चैप्टर है, एंड देन भारती जयंतीलाल का चैप्टर है। आई थिंक सुपर्ब चैप्टर, ऑल ऑफ यू शुड रीड। नाउ ऑल दीज इन्वेस्टर्स हैव अ यूनिक पर्सपेक्टिव and teach us about investing through their own case studies in different types of businesses, right? So I think this is again one book which all of you should read, Masterclass with Super Investors by Vishal Mittal and Saurabh Basrat. Then 3-4 more book recommendations before we come to Q&A round. The name of the book is Richer, Wiser and Happier. This is a book written by William Green. Now this book also follows a similar trail, कि ये बुक भी जैसे मास्टर क्लास में सुपर इन्वेस्टर्स है वैसी है थोड़ी, बट इसमें आई थिंक जो निक स्लीप का चैप्टर है एंड जो जकारिया की फिलॉसफी है, सो देयर आर 2 इन्वेस्टर्स, निक स्लीप एंड जकारिया, जिसका एक सुपर्ब चैप्टर है ऑन हाउ नॉट टू बी अ फूल, दैट डिस्कसेस सम ऑफ द कॉमन मिस्टेक्स दैट इन्वेस्टर्स मेक, एंड देयर इज अ सुपर्ब चैप्टर बाय देम। एंड इनकी जो इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है काफी सिंपल रहती है, कि आपको इन्होंने बेसिकली 3 कंपनीज में इन्वेस्ट करा था। एक अमेजोन में करा था, एक कॉस्टको में करा था, एंड एक थर्ड कंपनी और थी। बट कॉस्टको एंड अमेजोन में इनका एक कॉमन मेंटल मॉडल था, एंड अमेजोन को इन्होंने 2002-2003 से ऑलमोस्ट, जकारिया तो आज भी ओन करते हैं अमेजोन को। तो उसके पीछे क्या थिंकिंग थी कि इतना कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो था सिर्फ 3 या 4 कंपनीज का, वो हमें इनसे सीखना बहुत जरूरी है। हम लोग कहते हैं बार बार की 15 स्टॉक्स, 20 स्टॉक्स, बट इन्वेस्टर्स डू मेक वेल्थ जो कॉन्सेंट्रेट भी करते हैं, 3 या 4 स्टॉक्स में भी वेल्थ बन जाती है, बट यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप कर क्या रहे हैं। तो आई थिंक इनका जो चैप्टर है हमें ये सिखाता है कि अगर आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, तो 15-20 स्टॉक्स लेने इज अ फैलेसी। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, देन मे बी आप 10-15 स्टॉक्स ले सकते हैं। बट एसओआईसी के फ्रेमवर्क में हम लोग कहते हैं 15 स्टॉक्स से आपको ज्यादा लेने भी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि इतने स्टॉक्स ट्रैक करने मुश्किल हो जाते हैं। एंड मेजरली अगर मैं अपनी भी बात करूं, तो 8-9 स्टॉक्स में मेरी मेजर एलोकेशन है। आई थिंक हर एक स्टॉक के अंदर 8 to 10% अलाउ है, तो 10 स्टॉक्स विल बी क्लोज टू 70 to 80% ऑफ माय पोर्टफोलियो। तो अगेन कॉन्सेंट्रेशन भी है, एंड साथ साथ एक पोर्टफोलियो की टेल पोजीशन भी है, कि 5 स्टॉक जो टेल पोजीशन है उसके अंदर आते हैं, उनमें 4% एलोकेशन है। तो 15 स्टॉक का पोर्टफोलियो वर्क्स एक्सट्रीमली वेल फॉर मी, हैज वर्कड एक्सट्रीमली वेल फॉर मी, बट उसमें भी कॉन्सेंट्रेशन का एलिमेंट है, राइट। देन बहुत एक अगेन एक सुपर बुक है, दीज आर जो फैरनाइम स्ट्रीट है उनकी 2 वॉल्यूम्स हैं मेंटल मॉडल्स की बुक पे। सो आई थिंक हर एक इन्वेस्टर को मल्टी डिसिप्लिनरी थोड़ा सा होना चाहिए। अगर आप इन्वेस्टिंग नहीं भी करते, एज एन इंडिविजुअली आपको डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट से सीखना चाहिए। तो माने आज अगर मैं अपनी बात करूं, तो मैं फाइनेंस इतना नहीं पढ़ता, मैं जो कंपनीज है वो ज्यादा पढ़ता हूँ, बट मैं क्या करता हूँ कि मैं आउटसाइड ऑफ द सब्जेक्ट काफी पढ़ता हूँ। जैसे मैंने रिसेंटली एक बुक खत्म करी थी बाय द नेम ऑफ रेंज, एंड इट्स अ फैंटास्टिक बुक। तो आई थिंक आउटसाइड ऑफ द सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप उसको फाइनेंस से रिलेट कर सकते हैं। तो जो साइकोलॉजी के मेंटल मॉडल्स है, इंसेंटिव कॉस्ट बायस, माने जिसकी रोटी खाऊंगा उसका गाना गाऊंगा, माने जो मेरे को बेसिकली हुज ब्रेड आई ईट हिज सॉन्ग आई सिंग। तो अगेन एक इंसेंटिव कॉस्ट बायस है, कि अगर आप किसी का इंसेंटिव पकड़ पाए,
तो आप पकड़ ये समझ पाएंगे उसका रीजनिंग क्या है उस चीज को करने का। तो ये साइकोलॉजी से आता है। अब इसको हम कंपनीज में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं कि मैनेजमेंट चोरी क्यों करती है, क्योंकि उनका इंसेंटिव क्या है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़ाना कंपनी का, या तो अब उनका इंसेंटिव क्या है कि पैसा साइफन ऑफ करना। तो ये साइकोलॉजी एस्पेक्ट है कि इंसेंटिव कॉस्ट बायस की वजह से है। देन आप उसको किससे क्रॉस मैच कर सकते हैं, अकाउंटिंग से, कि आप अपने अकाउंटिंग चेक्स कर सकते हैं। सो आई थिंक ये मल्टी डिसिप्लिनरी चेक्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो साइकोलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी, लिटरेचर एंड इकोनॉमिक्स, इन दोनों बुक्स में आई थिंक बहुत सिंपली ये सारे कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन्ड है। इनकी 3 या 4 वॉल्यूम्स और आनी है, सारी की सारी मैं तो पर्सनली खरीदूंगा। बट आई थिंक डिफरेंट मेंटल टूल्स आज के इन्वेस्टर को बहुत रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपको बाहर से जरूर पढ़ना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन इज द नंबर वन थिंग विच डिसाइड्स सक्सेस और फेलियर। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, like 6-7 months ago we invested in सारेगामा। सारेगामा में मैंने एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग नोटिस करी कि सारेगामा जो म्यूजिक है सारा का सारा लाइसेंस करता है, राइट। तो जितनी भी स्ट्रीमिंग एप्स है उनको जितना भी म्यूजिक है ये लाइसेंस कर रहे हैं। तो आई थिंक मैंने अपनी जो बहन है उसके फोन में देखा, अपना जो भाई है उसके फोन में देखा, तो दोनों एक्चुअली में कोई गाना डाउनलोड नहीं कर रहे थे, दोनों गाने स्ट्रीम कर रहे थे। एंड मैंने अपने जो दोस्त है उनसे भी बात करी, सारे के सारे गाने स्ट्रीम कर रहे थे। एंड सारेगामा एक्चुअली हैज अ लाइब्रेरी ऑफ मोर देन 1,20,000-30,000 सॉन्ग्स। सो आई थिंक वो एक वैल्यू चेन में सबसे प्रॉफिटेबल कंपनी है इस टाइम पे। तो अगेन एक एनेक्डोटल एविडेंस था, बट आसपास 20-25 लोगों से पूछने के बाद ही मेरे को एब्सोल्युटली ये चीज तो क्लियर हो गई थी कि जो स्ट्रीमिंग है सारे लोग अब स्ट्रीमिंग यूज करने वाले हैं। सो आई थिंक ये चीजें काफी इंटरेस्टिंग रहती हैं। Then one more book that we have is Financial Shenanigans by Howard Schilling. Now again, incentive cost bias is a root cause of all evil when it comes to listed companies. क्योंकि सारी companies want to increase their market capitalization and all of the promoters want to earn more money. तो बहुत कम कंपनीज होती हैं जो अपने शेयर होल्डर्स का भी ध्यान रखती है अच्छे से, उनको अच्छे से जो जितना भी कंपनी का डिविडेंड है वो भी पे आउट करती है, एंड साथ साथ प्रॉफिट्स को अच्छे से री इन्वेस्ट करती है। तो फाइनेंशियल शेनानिगन ये ऐसी बुक है जो आपको एक्चुअली में एक आइडिया दे सकती है कि डिफरेंट केस स्टडीज कैसे होती है। तो सिमिलरली मैं अगर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो देर आर क्लोज टू 10-15 रिपोर्ट्स जो विच आई एम प्रिपेयरिंग राइट नाउ ऑन फाइनेंशियल शेनानिगन्स टू। तो हमारा जो बेसिकली पूरा जो फाइनेंशियल जो 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 जितने भी फाइनेंशियल शेनानिगन्स हैं इनको मैं साथ साथ अपने लिए खुद के लिए भी अपडेट करते रहता हूँ। एंड इसमें डिफरेंट केस स्टडीज है, क्योंकि आप केस स्टडीज के थ्रू अगर किसी चीज को सीखेंगे तो आपकी लर्निंग परमानेंट हो जाती है, राइट। कि एक बार ये चीज ऑलरेडी हो चुकी है तो आपको दिमाग में रहता है ये चीज शायद से और भी हो सकती है। तो आई थिंक इट बिकम्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अगर आप जो ऐसी बुक्स को पढ़ के उनको इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करके देखें। देन वी हैव 2 more बुक्स। तो पहली बुक तो पीटर लिंच की बुक्स है, दैट इज वन अपॉन द वॉल स्ट्रीट, एंड सेकंड वन इज बीटिंग द स्ट्रीट। सो हमारी वेबसाइट पे आपको एक ब्लॉग मिलेगा वन अपॉन वॉल स्ट्रीट का। तो मैंने रिसेंटली एक ब्लॉग लिखा था वन अपॉन वॉल स्ट्रीट पे कि हाउ टू अप्लाई पीटर लिंच फ्रेमवर्क इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। एंड आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो भी मिलेगी, पीटर लिंच 10 बैगर फ्रेमवर्क। तो पीटर लिंच की 2 बुक्स का हमने वो बनाया रिव्यू, एक तो इनका मेंटल मॉडल का एंड एक हमारे इनका बुक रिव्यू करा है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो आई थिंक सिंपलेस्ट बुक, अगर आप बिगिनर हैं सिंपलेस्ट बुक है आपके लिए, आप इन दोनों बुक्स को पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में जो कैसे स्टॉक पिकिंग होती है वो पता लगेगा आपको। आई थिंक पीटर लिंच का जो ट्रैक रिकॉर्ड था 29-30% कंपाउंडिंग का, उनकी बुक्स में भी रिफ्लेक्ट करता है कि एक्चुअली में बहुत मतलब ही इज अ वेरी एक्सपर्ट, क्योंकि एक्सपर्ट लोग ही कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अगर आप कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो एक्चुअली में आपने उसमें जो आपकी एक्सपर्टीज है उस कॉन्सेप्ट पे काफी अच्छी है। तो आई थिंक दिस इज वन बुक विच ऑल ऑफ यू शुड रीड, बोथ द बुक्स आर सुपर्ब अगर आपको पढ़नी है तो। देन on coming Friday, so for all the SOIC members, so जो SOIC students हैं उनके लिए हम लोग 6 अगस्त को लाइव बुक रीडिंग सेशन कर रहे हैं फर्स्ट टाइम ऑफ अ बुक बाय द नेम ऑफ लॉन्ग टर्म wealth of long term value and wealth creation from equity investing by Bharat Shah. I think this is a super book and इसका हम book reading session करने वाले हैं स्टूडेंट के साथ on coming Friday. So I think it will be a very interesting activity to do. तो अगर आप SOIC member है
तो आप इस चीज को समझ पाएंगे कि इस बुक को मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। मैंने आपको कोर्स में भी इस बुक के बारे में बताया था। एंड कमिंग फ्राइडे को हम लाइव बुक रीडिंग सेशन भी करेंगे। राइट। And just before going to question and answers, what we are going to do on 29th August and 5th September is a webinar on the general insurance industry and the life insurance industry and जितने भी प्रॉक्सीज है उनके सब पे हम यहाँ तक जो पॉलिसी बाजार है उसको भी कवर करेंगे एंड जितने भी मल्टीपल प्रॉक्सीज हैं सबको कवर करने वाले। So webinar we are doing in collaboration with Scientific Investing with Mr. Saurabh Kumar and जो webinar का link to registration है that वो next Tuesday या Wednesday को हम लोग release कर देंगे। So with this we'll come to Q&A. Thank you for joining us. Just a moment. Right. So I'm just coming to question and answers now. तो जितने भी question and answers हैं मैं एक बारी उनको देख लेता हूँ। Right. हाँ, so Gaurav has a question कि what is the ultimate thing, ROC और EPS growth? I think हम लोग तो ये बोलते हैं कि EPS growth तो मिलनी चाहिए, but EPS growth के साथ साथ अगर ROC expansion मिल गया आपको, that is like a twin, मतलब that is like a twin turbo engine. यहाँ पे maximum wealth creation होती है इन कंपनीज में, जहाँ पे ROC भी expand होते हैं, यहाँ पे जो EPS है उसकी भी ग्रोथ आती है। तो आई थिंक प्रॉफिट ग्रोथ अच्छी चीज है, बट अगर प्रॉफिट ग्रोथ से आपकी आरओसी डाइल्यूट हो रही है तो मैं काफी टाइम से कंपनी बाय द नेम ऑफ विनिटी ऑर्गेनिक्स उस पर थोड़ा सा नेगेटिव हूँ, क्योंकि वहां पे आरओसी की डाइल्यूशन होने वाली है, मार्जिन कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं। काफी लोग जो नैरेटिव इन्वेस्टिंग है वो करते हैं, बट हम लोग नैरेटिव इन्वेस्टिंग नहीं करते, तो वहां पे आरओसी आपको कॉन्ट्रैक्शन दिखेगा। एंड इवन दो टॉप लाइन ग्रोथ आएगी, बट आपको प्रॉफिट्स में इतनी ग्रोथ नहीं दिखेगी, क्योंकि जो नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ है वो आरओसी डाइल्यूटिव ग्रोथ है। इवन तो जो केमिकल सेक्टर है एज सच वही पूरा रीरेट हो चुका है, पर अगर आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे विनीति की, तो प्रॉफिट ग्रोथ मेरे को लगता है यहाँ से स्लगिश होगी। इस वजह से मैं ऐसी कंपनीज पे थोड़ा नेगेटिव हो जाता हूँ। या अगर आपका प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है तो आरओसी आपकी सस्टेनेबल रहे, या तो अगर आपकी प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है तो बेस्ट है कि अगर आपकी आरओसी भी एक्सपैंड हो जाए, उससे बेटर कुछ नहीं होगा अगर आप ऐसा कॉन्सेप्ट भी ढूंढ पाएंगे। राइट। सो Ashutosh has a question, your view on Newgen software. So Ashutosh, Newgen software पे हम लोग वीडियो बनाएंगे, बट प्रॉब्लम क्या है कि इट्स अ प्रोडक्ट कंपनी। तो आईटी सेक्टर में आज तीन तरीके की कंपनी है। एक तो आईटी सर्विसेज कंपनी है जो इन्फोसिस बिरला सॉफ्ट ये सारी है। देन फिर आपकी E&RD कंपनीज है, माने इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसमें कौन सी कंपनीज आती है? LTTS आती है, टाटा एलेक्सी आती है। एंड फिर आपकी थर्ड टाइप की कौन सी कंपनी आती है? थर्ड टाइप की आपकी कंपनीज आती है आईटी प्रोडक्ट कंपनीज। अब आईटी प्रोडक्ट कंपनीज क्या करती है बेसिकली कि आईटी प्रोडक्ट कंपनीज में ये लोग जो प्रोडक्ट है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कंपनीज आती है लाइक इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना, देन वी हैव कंपनीज लाइक न्यूजेन सॉफ्टवेयर, देन वी हैव कंपनीज लाइक रैमको सिस्टम्स। तो प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर वॉलेटिलिटी काफी रहती है कि अगर आपका किसी क्वार्टर में इम्प्लीमेंटेशन हुआ प्रोडक्ट का या नहीं हुआ, तो आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत वॉलेटाइल रहते हैं। तो इसमें ईयर ऑन ईयर हमें देखना चाहिए। तो न्यूजेन सॉफ्टवेयर पे आई विल मेक अ वीडियो, बट प्रॉब्लम कैसी है न्यूजेन सॉफ्टवेयर जैसी कंपनी में, यहाँ पे ड्यू डिलिजेंस करना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअली में इनका प्रोडक्ट एंड में मार्केट शेयर विन कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो एक थोड़ा सा डिफिकल्ट एस्पेक्ट रहता है, तो इस चीज को आपको बहुत अच्छे से पहचान लाना चाहिए। तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट इस पे डेफिनेटली वील मेक अ वीडियो। अच्छा, तो समवन इज आस्किंग ऑन लॉरस लैब्स कि लॉरस लैब्स में एआरवी एपीआईज का वो घट गया रेवेन्यू। तो एक्चुअली में एज अ सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, on coming Tuesday we have a video coming up on the results of Laurus Labs, Deepak Nitrite, and on the result and on a very interesting development in PI Industries। तो हम तीनों कंपनीज का जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है हम तीनों को कवर करने वाले हैं ट्यूसडे को। ऑलमोस्ट 25-27 मिनट्स की वीडियो है, एंड की कॉन्सेप्ट्स का जो रिजल्ट्स के थे या जो भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही है उनको उनको पूरा वीडियो कवर करती है। राइट, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, कमिंग ट्यूसडे आ रही है।
राइट। So Sakir has a very interesting question. So Sakir, thank you so much for following us for a long time. तो मैं आपके comments देखते रहता हूँ. Thank you for following us for a long time. So what is the most insightful learning you have ever learned from any book which kind of changed your investing philosophy completely? I think Sakir, one learning which I got, I think बुक से ज्यादा मेरे को जब रियल प्रैक्टिकल लाइफ में मैं देखूं तो एक लर्निंग जो मेरे को मिली कि हम लोग सारे इन्वेस्टिंग में अथॉरिटी ढूंढते हैं, राइट? बट एक्चुअली में कोई अथॉरिटी है नहीं यहाँ पे, बिकॉज अथॉरिटी भी एंड में इज डीलिंग विद प्रोबेबिलिटीज। अगर आज आप मेरे को अथॉरिटी समझते तो मैं अथॉरिटी हूं नहीं इन्वेस्टिंग में, क्योंकि आई एम ऑल्सो डीलिंग विद प्रोबेबिलिटी कि शायद से मेरे ऑड्स आर बेटर देन द ऑड्स इन अदर बेट। तो प्रोबेबिलिटी की जो अप्रिसिएशन है इन्वेस्टिंग में वो मेरे को लास्ट 2 years से यानी स्टार्ट हुई है। तो इवन दो आई हैव मेंटर्स इन इन्वेस्टिंग, but I do not consider anyone completely as a authority in investing. Because जब आप authority बारे में ढूंढेंगे तो authority can also go wrong in investing. So probabilistic mindset is perhaps my biggest learning in last 2-3 years. काफी लोग ये चीज को नहीं समझ पाते, इस वजह से वो हमेशा अनसर्टेन रहते। एक्चुअली में अनसर्टेनिटी इज योर फ्रेंड इन इन्वेस्टिंग इन लाइफ। यू हैव टू मेक फ्रेंड्स विद अनसर्टेनिटी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा एक ऐसी चीज है जो आपके फेवर में जा सकती है, जो आपके अगेंस्ट जा सकती है, बट वी ट्राई टू मेक ऑड्स इन आवर फेवर। इस वजह से हमेशा हम्बल रहना चाहिए इन्वेस्टिंग में एंड हमेशा ओपन रहना चाहिए, क्योंकि आप कभी भी गलत हो सकते हैं। तो आपकी गलती से आपकी क्या लर्निंग है आपको वो सीखना चाहिए, आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे। हाँ, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन फिक्स ट्रांसमिशन। सो नेशनल जय, सो आई थिंक जो हमने टॉप टेन स्मॉल कैप कंपनीज की वीडियो करी थी, तो आई थिंक उसमें पिक्स ट्रांसमिशन की मैंने बात करी थी एज अ 10th कंपनी। तो पिक्स ट्रांसमिशन का बिजनेस एक्चुअली में है ही उतना, एक सिंगल प्रोडक्ट बिजनेस है जिसमें उनके पास 2400 SKUs है वी बेल्ट के अंदर। बिजनेस लुक्स वेरी वेरी वेल पॉइज्ड, बस प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे मैनेजमेंट के डिस्क्लोजर नहीं है, तो आपको कभी पता नहीं है कि क्या हो रहा है कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे स्कटल बट करना पड़ता है कि आपके जो इंडस्ट्रियलिस्ट फ्रेंड्स हैं या फिर जिनके जिनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, आपको उनसे पूछना चाहिए कि वो कौन सी कंपनी की वो यूज कर रहे हैं वी बेल्ट। आई थिंक अगर इस कंपनी के अंदर कंज्यूमेबल की स्टोरी चल गई, तो रिफ्रैक्टरीज और अब्रेजिव्स को जब मैं देखता हूँ तो 40 या 35 की पी पे ट्रेड करते हैं। Whereas V belts are also consumable in nature, माने ये भी एनिटी बिजनेस है, रिपीट यूसेज है रिफ्रैक्टरीज और अब्रेसिव्स की तरह। तो यहाँ पे अगर अर्निंग्स ग्रोथ आती है तो यहाँ पे री रेटिंग की काफी पोटेंशियल है, क्योंकि इट इज डर्ट चीप। माने 6-7 की पी नहीं, बट 15-16 की पी पे इट्स डर्ट चीप। तो थोड़ा सा अगर आप स्कटल बट कर सकते हैं इस कंपनी में, तो आई थिंक दिस कंपनी इज एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंगली प्लेस्ड। एंड क्योंकि इट्स अ कंज्यूमेबल एंड आज के मार्केट एनवायरमेंट में थोड़ी सी भी स्टोरी चलती है तो री रेटिंग काफी फास्ट हो रही है। So I think it's an interesting company to look at. Right. So Ritesh has a question for companies holding for 30 years. Which companies can you be can you hold for 30 years? तो यहाँ पे again मेरे ओपिनियन में आज हम एक बहुत डिसरप्टिव वर्ल्ड में है, तो कभी भी कुछ भी चेंज हो जाता है। तो मैं पर्सनली 3 या 4 साल से ज्यादा होराइजन लेके चलता नहीं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। अगर 3 साल की एंड में कुछ इंटरेस्टिंग होता है तो देन आई कीप होल्डिंग। जैसे एपीएल अपोलो वी आर होल्डिंग सिंस 2017-2018, तो ऑलमोस्ट 3 years से ज्यादा हो गए होल्डिंग पीरियड को। बट वहां पे अब इंटरेस्टिंग चेंजेस हुई हैं, जो कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिड्यूस हो गया है, कंपनी फ्री कैश फ्लो मशीन बन गई है, ऑपरेटिंग कैश फ्लो कंपनी का काफी बढ़ चुका है। तो वहां पे छोटी छोटी चेंजेस हुई है, जिसकी वजह से नाउ मे बी आई कीप होल्डिंग फॉर नेक्स्ट 12 to 24 months। इवन तो वैल्यूएशन अब महंगी हो गई है, एक टाइम पे 10-12 की पी पे मिलता था, आज 50-60 की पी पे पहुंचा दिए। सो आई थिंक इंटरेस्टिंग बिजनेस है, बट हमेशा आपको आपको क्या सोचना चाहिए कि हमेशा बी ओपन। नथिंग इज इनएविटेबल बट चेंज इन दिस वर्ल्ड। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। सिमिलरली बिजनेसेस में भी थिंग्स कीप चेंजिंग। अगर मैं आज हम अम्बेसडर की बात करते हैं, तो अम्बेसडर एक टाइम पे सबसे फेमस कार होती थी, बट देन मारुति आ गया, तो मारुति ने पूरा मार्केट शेयर ले लिया एम्बेसडर का। देन मे बी अब मारुति के कंपटीशन में और भी कंपनीज आ रही हैं धीरे धीरे। सो अगेन चेंज इज नथिंग बट द लॉ ऑफ नेचर।
तो हर 3 साल बाद आपको अपनी फिलॉसफी को रीअसेस करना चाहिए। हर आई थिंक आफ्टर एवरी 21-24 मंथ्स जो भी आपने कंपनी ले रखी है उसको बैठ को आपको ये देखना चाहिए कि इसके अंदर कोई चेंज तो नहीं हो रही, ऐसी चेंज तो नहीं हो जाएगी कि बिजनेस ही खत्म हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको हर 18-24 मंथ्स में अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसके साथ करना चाहिए। माने एक टाइप ऑफ जो एक रिव्यू है इन्वेस्टमेंट का वो जरूर करना चाहिए। युवराज Yuvraj is wishing happy friendship day. So happy friendship day to you too. So you have also been following us for a very long time. So again, thank you so much. And then right. So Yuvraj, actually, I lost your question. So क्योंकि बहुत सारे comments आ रहे थे, so it just went above. Right. Then we have a question on semiconductor industry. We have been reading through shortages of, but are Indian companies working towards? So Ram, ये एक बहुत बड़ा I think sort of like स्कैम भी है कि जो लोग कह रहे हैं कि इंडिया सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में कुछ कर पाएगी। प्रॉब्लम है कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री इज सो टेक्नोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स कि कोई भी इंडियन कंपनी इसमें आज से जितना काम नहीं कर पा रही। सो आई थिंक जो छोटी छोटी कंपनीज है उनका रेवेन्यू काफी छोटा है इस टाइम पे। बट आई थिंक जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है इसमें मेजर कंपनीज तो हमने जैसे बात ही करी है लाइक TSMC, लाइक जो हमने ASML होल्डिंग्स की बात करी। देयर इज आल्सो वन वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी व्हिच ओन्स द पेटेंट्स। मैं अभी इस टाइम पे उसका नाम भूल रहा हूँ, मैंने अभी पढ़ा था 1-2 हफ्ते पहले। सो दैट कंपनी इज ग्रोइंग एट 70-80% ऑड रेट्स ऑफ रिटर्न। तो अभी मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, बट इट इज लिस्टेड इन US। स्मॉल कैप है बट इट हैज अ लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। अभी शायद से उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, तो बाद में मे बी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें कमेंट सेक्शन में उसका नाम मेंशन कर दूंगा एक बारी। सो दैट कंपनी इज सुपर्ब इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ रेट। बट इंडिया एज अ ecosystem in semiconductor, we are nowhere. So I think यहाँ तक चाइना भी इतने साल की इन्वेस्टमेंट बाद भी आज तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि ताइवान के अंदर सारा इकोसिस्टम है। US के अंदर अब डिफरेंट फैब सेटअप हो रही है, बट आई थिंक ताइवान इज द कंट्री विच इज वे अहेड इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ दिस। एंड जो चिप की डिजाइनिंग है उसमें अमेरिकन कंपनीज आर वे अहेड। In terms of value chain, Indian companies, I don't think we are anywhere in that ecosystem, right? All right. So, how to figure out sectoral tailwinds by Vaibhav Sharma? So, Vaibhav basically, if you look at sectoral tailwinds, तो एक चीज काफी इंटरेस्टिंग है कि कोई भी स्टॉक एक आइसोलेशन में अच्छा नहीं करता, कभी कभी पूरा सेक्टर ही अच्छा करता है। तो जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, क्या लास्ट 10 साल में आरती इंडस्ट्रीज ने वेल्थ बनाई है? आंसर इज यस। क्या लास्ट 10 इयर्स में दीपक नाइट्राइट ने वेल्थ बनाई है? आंसर इज यस। क्या लास्ट 10 इयर्स में अतुल ने वेल्थ बनाई है? द आंसर इज यस। क्या लास्ट ईयर में विनिति ऑर्गेनिक्स ने वेल्थ बनाई है? द आंसर इज यस। क्या लास्ट 10 इयर्स में नवीन फ्लोरिन ने वेल्थ बनाई है? द आंसर इज यस। ऑल दीज कंपनीज आर 50-60-70 बैगर्स। तो पूरा सेक्टर ही अच्छा कर रहा है इस टाइम पे। एक्चुअली में कभी कभी इफ यू गेट द सेक्टर राइट यू कैन क्रिएट मैसिव वेल्थ, राइट? सिमिलरली लास्ट 2 डेकेड्स में जो प्राइवेट फाइनेंशियल्स हैं जिन्होंने पब्लिक सेक्टर बैंक से मार्केट से खींचा है, क्या लास्ट 2 डेकेड्स में कोटक बैंक ने वेल्थ बनाई है? द आंसर इज यस। क्या लास्ट 2 डेकेड्स में एक्सिस बैंक ने वेल्थ बनाई है? द आंसर इज यस। क्या लास्ट 2 डेकेड्स में HDFC बैंक ने वेल्थ बनाई है? द आंसर इज यस। अगेन द लास्ट 10 इयर्स में बजाज फाइनेंस से वेल्थ बनाई है? द आंसर इज अगेन यस। सो अगेन वहां पे सेक्टोरल टेलविंड चल रही है वैल्यू माइग्रेशन की। तो अगेन सेक्टर टेलविंड्स कभी भी एक कंपनी आइसोलेशन में अच्छा नहीं करती, कभी मोस्ट ऑफ द टाइम सेक्टर ही अच्छा कर रहा होता है, राइट? तो फार्मा में भी अगर हम CDMO बिजनेसेस देखते हैं, क्या सिंजीन ने वेल्थ बनाई? द आंसर इज यस। क्या डीवीज ने वेल्थ बनाई? द आंसर इज अगेन अ यस। हाइकल अगेन एक ऐसी कंपनी है जो इस जर्नी के ऊपर मेरे को लग रहा है जा सकता है। तो एज अ फुल डिस्क्लोजर हम लोग हाइकल के अंदर इन्वेस्टेड है। सो हाइकल में भी शायद से सेम चीज हो सकती है कि अगेन टेलविंड्स के बीच में इंटरसेक्शन पे इंटरैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हाइकल एग्रोकेमिकल के CDMO में भी है, एनिमल के CDMO में भी है, फार्मा के CDMO में भी है। तो तीनों ही सेक्टर्स टेलविंड्स के अंदर है। तो हाइकल अगेन इज अ कंपनी, मेरे को लगता है कि जो नेक्स्ट 5 इयर्स में कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता है हाइकल के अंदर। सिमिलरली PI इंडस्ट्रीज की बात करें, लास्ट 2 डेकेड्स में एग्रोकेमिकल में इन्होंने वेल्थ बनाई क्योंकि ये लोग उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे।
अगेन द आंसर इज यस। पीआई इंडस्ट्रीज दिस हैज अ फुल डिस्क्लोजर। हम लोग ऑलमोस्ट हमारी सबसे शायद से ओल्डेस्ट होल्डिंग पीआई इंडस्ट्रीज है। तो ओल्ड पीआई इंडस्ट्रीज like we are invested both in our family portfolios in my personal one too. So again tailwinds, अगर मैं आज पूरे पोर्टफोलियो की बात ही करूं तो पूरा पोर्टफोलियो ही हमारा इज गोइंग थ्रू टेलविंड्स। शायद से एक दो कंपनीज है विच आर इन हेडविंड्स क्योंकि वहां पे वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर गोइंग थ्रू टेलविंड्स क्योंकि वहां पे 15-20-25% अर्निंग्स ग्रोथ का चांस लगता ही लगता है, राइट। सो जो SOIC स्टूडेंट्स है उनको पता है क्योंकि हम लोगों ने पूरा पोर्टफोलियो आई थिंक लाइक इट इज देयर इन द कोर्स जस्ट एज अ फुल डिस्क्लोजर, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट्स के साथ एकदम ट्रांसपेरेंट रहना चाहते हैं कि पूरे लास्ट 1 ईयर से जो भी हम ओन करते हैं, जब से हमने कोर्स स्टार्ट करा है तब से हमने पूरा पोर्टफोलियो डिस्क्लोज कर रखा है, ताकि एज इन टर्म्स की एट द एंड ऑफ द डे मतलब हम लोग कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं देते, but just if someone wants to look कि what we are preaching is what we are following, तो एक्चुअली में वो एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी हो जाती है। हाँ सौरभ, सो इंडोको रेमेडीज हमने ऑलरेडी API वेबिनार के अंदर कवर करा था। तो ऑन ऑन आर बेसिकली सो कवरिंग जस्ट सेकंड, राइट, जस्ट सेकंड, सॉरी। सो इंडोको रेमेडीज इज समथिंग जो हम एक कभी ना कभी चैनल में डिस्कस करेंगे, बट दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कंपनी बिकॉज 2022 विल बी अ ब्लॉकबस्टर ईयर फॉर दिस कंपनी, क्योंकि सारी फार्मा जो यूएस जेनेरिक कंपनीज है डी ग्रोथ शो करेंगी, बट दिस कंपनी विल शो ग्रोथ। तो आई डोंट नो व्हाट द मल्टीपल इसको क्या मिलेगा, बट आई थिंक डाउनसाइड कम है इस कंपनी में। सो इट्स अ सुपर्ब कंपनी। आई थिंक इंडोको रेमेडीज मैनेजमेंट इज आल्सो वेरी कंजर्वेटिव एंड डोमेस्टिक बिजनेस में इन द जो डेंटल थेरेपी है, इन टर्म्स ऑफ डेंटल थेरेपी में दिस कंपनी is a market leader. So I think it becomes very very interesting. This company is superb. So आप इसकी कौन कॉल आपको पढ़नी चाहिए लास्ट 2-3 क्वार्टर्स की, आपको आंसर मिल जाएंगे सारे। हाँ, views on CDMOs having assets outside India versus having, so Harsha, that's a superb question. I think that is one of the best questions that has been asked as of now. CDMOs outside the country have lesser asset turns, have equivalent or lower margins, and all in all have lower ROC, return on capital कम है, margins कम है क्योंकि employee cost बहुत ज्यादा है, and asset turns भी कम है। तो Decal and Piramal, even though Piramal is one of the champions in CDMO, but I think I will still prefer a DVs over a Piramal, because इंडिया का अगर लो कॉस्ट एडवांटेज का मजा ही नहीं उठा पा रहे, तो मतलब as an investor in Indian markets, हमारा one of the biggest advantage in export businesses is low cost at superb quality. These are some of the businesses which we just need to which we just need to have some of the times, अगर आप समझते हैं तो I think Piramal Pharma I will rate at a lower level as compared to DVs. DVs is superior than Piramal Pharma for me, in my opinion. क्योंकि आरओसी आपका एक स्टेज से ज्यादा नहीं हो सकता, राइट। सो सन्नी हैज अ क्वेश्चन ऑन IDFC फर्स्ट बैंक। सो IDFC फर्स्ट बैंक मैंने चैनल पे कवर भी करा है। सो एक चीज जो मेरे लिए थोड़ी डिफिकल्ट है, शायद से आपको आती हो, मैं टर्न अराउंड नहीं स्पॉट कर पाता सक्सेसफुली फाइनेंशियल्स में। शायद से IDFC फर्स्ट बैंक टर्न अराउंड हो सकता है, वैद्यनाथन इज अ सुपर प्रमोटर, तो बस वो मेरे आउट ऑफ सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस रहता है, तो इस वजह से मैं इन्वेस्ट नहीं करता उसके अंदर। अगर आपको समझ आता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने एक 40 मिनट की वीडियो बनाई थी IDFC फर्स्ट बैंक पे, आप पूरी वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने एक्चुअली जो इन डेप्थ पूरा जो बिजनेस है उसको कवर करा है, राइट। देन वी हैव अ क्वेश्चन ऑन, राइट। सो बोरोसिल रिन्यूएबल पे एक क्वेश्चन है 20% के। सो बोरोसिल रिन्यूएबल एक इंटरेस्टिंग सेक्टर में है, पर शायद से बोरोसिल जो रिन्यूएबल है इसमें शायद से सप्लाई साइड पे इतनी डोमिनेंस नहीं है, क्योंकि रिसेंटली एक और कंपनी ने अनाउंस करा कि हम लोग भी लाइक जो सोलर ग्लास है इसके अंदर कैपेक्स अनाउंस करा है उन्होंने। तो आई थिंक दैट बिकम्स इंटरेस्टिंग कि अगर आप इस बिजनेस को समझ पाते अच्छे से या नहीं समझ पाते, तो मेरे से सप्लाई साइड पे अगर मैं नहीं समझ पाया कोई चीज तो मैं नहीं खरीदता। तो बोरोसिल रिन्यूएबल मेरे लिए टू टफ बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे वेल्थ डिस्ट्रक्शन भी हो सकती है।
अगर और प्लेयर्स ने अपनी कैपेसिटी अनाउंस कर दी सोलर क्लास में, क्योंकि मार्केट अगले 24 महीने की कैपेसिटी को आज ही डिस्काउंट कर लेगा. मार्केट इज a discounting machine, so supply side is what matters at the end of the day. So right, SOIC membership benefits by Omkar. So Omkar, every month we try to do a deep dive webinar for all the students, and every month we have one more webinar, चाहे वो book reading का हो, चाहे वो doubt sessions का हो. तो recently 3 hours का Excel sheet का webinar हुआ था. उससे पहले 3.5 hours का checklist पे webinar हुआ था. Then साथ साथ भी monthly webinar भी हुआ था 3 different industries पे, एक bromine industry पे, एक fluorine industry पे, and साथ aroma chemical industry पे. उससे पहले एक वेबिनार हमने करा था प्लेटफॉर्म बिजनेसेस पे. आई थिंक फरवरी मार्च में हमने CDSL ये सारी कंपनीज कवर करी थी. फिर हमने APR जो फार्मा सेक्टर है उस पर भी वेबिनार करा था. सो आई थिंक क्लोज टू 8 to 9 इंडस्ट्रीज पे, ऑल इन ऑल आई थिंक 7 to 8 इंडस्ट्रीज पे वेबिनार हो चुका है. एंड इसके बाद भी अब हम लोग जो इंश्योरेंस सेक्टर है इस पे वेबिनार करते हैं, डायग्नोस्टिक्स पे वेबिनार करेंगे. तो आई थिंक धीरे धीरे करके जितने भी सेक्टर्स वर्थ कवरिंग है सबको कवर कर लेंगे. तो लाइव वेबिनार होते हैं, उसके जो रिकॉर्डेड सेशंस हैं SOIC मेंबर्स के लिए अवेलेबल होती है. एंड SOIC मेंबर्स को जो मंथली वेबिनार है उसके लिए पे नहीं करना पड़ता. एक बार अगर वो ऑलरेडी मेंबरशिप के पार्ट बन गए. देन हमारा एक SOIC लर्निंग क्लब करके हमने ग्रुप भी बना रखा है, जिसमें हम बार बार मैं अपनी स्कटलबट शेयर करते रहता हूँ. तो आज जैसे मैं 2 कंपनीज है, सॉरी एक कंपनी है, उसकी जो स्कटलबट है वो स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने वाला हूँ. सो आई थिंक वो एक इंटरेस्टिंग रहता है क्योंकि कोई ना कोई न्यू लर्निंग्स वी कीप शेयरिंग विद ऑल द स्टूडेंट्स. एंड साथ साथ SOIC इंटेंसिव कोर्स है जिसमें वी हैव डन plenty of केस स्टडीज टू, राइट. Right. So Deepak, I'm not tracking the fertilizer sector, so I wouldn't be able to answer. तो फर्टिलाइजर वाला सेक्टर ना मैं अभी ट्रैक नहीं कर रहा फिलहाल. राइट. Just as a disclosure, Raghu is asking, Saregama we own, so not a recommendation to buy or sell. Saregama मैंने last 2 जो live Q&A थे उनमें भी बात करी थी. तो Saregama we own. बट डिसहार्टनिंग क्या होता है कि जब सारेगामा की वीडियो डाली तो लोग लिखते हैं कि स्टॉक हैज ऑलरेडी गॉन अप और ये सब. वी आर नॉट हियर टू रेकमेंड यू टू बाय और सेल. हमारा पर्पस क्या है कि अगर आप बिजनेस एनालिसिस सीख जाए, इफ यू लर्न हाउ टू फिश, देन दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. तो कभी कभी ऐसे कमेंट्स थोड़े डिसहार्टनिंग भी होते हैं हमारे लिए, क्योंकि ऑलरेडी हम बुल मार्केट में, तो एवरीथिंग इज गोइंग अप. ऐसा कुछ नहीं कि हमने कुछ खास पिक करें, राइट. सो अगर कोई बिजनेस हमें अच्छा लगता है, अगर बिजनेस इज डूइंग वेल, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरमेंट आई विल इन्वेस्ट इन दैट बिजनेस. राइट. हाँ, कावेरी सीड्स पे क्वेश्चन है. सो कावेरी सीड्स, अंकित, तो दिस वाज अ वेरी गुड कंपनी बिटवीन 2010 to 2015, बट 2016 में गवर्नमेंट रेगुलेशन आ गई जिससे कॉटन सीड्स के प्राइसेस कैप हो गए थे. तो यहाँ पे रेगुलेशन से बहुत ध्यान रखना कि अगर रेगुलेशन आ जाती है सीड प्राइसिंग पे, तो आपकी थीसिस खत्म है. तो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड सेक्टर्स में या जहाँ पास्ट में ऑलरेडी हो गया हो, तो मैं ऐसे सेक्टर्स में ज्यादा नहीं जाता. तो आई थिंक मतलब मेरे को थोड़ा रिस्क इन सेक्टर्स में ज्यादा लगता है. इवन दो कंपनी अच्छी है, नो डाउट, कैश काउ कंपनी, कैश मशीन कंपनी है, आते जाते अपना अपना ही स्टॉक बायबैक करती रहती है. तो आई थिंक कंपनी अच्छी है, बट सेक्टर थोड़ा सा ऐसा है जहाँ पे रेगुलेशन काफी है, थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको. सो योर रूटीन, हाउ डू यू, सो जयदीप, थैंक यू फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन. आप काफी टाइम से पूछ रहे हो. सो रिसर्च, कंटेंट क्रिएशन, सो बेसिकली just अगर if we, so I have these goals, weekly goals, कि मेरे को एक हफ्ते में अगर 2 वीडियो पे काम करना है. एंड साथ साथ अगर मेरे को एक महीने के अंदर मेरा एक मंथली गोल क्या रहता है कि एटलीस्ट 2 बुक्स आई फिनिश इन अ मंथ. क्योंकि मैं मतलब 4 बुक्स में कर सकता हूँ खत्म, बट 2 बुक्स में मेरे को थिंकिंग करने में ज्यादा मजा आता है. सो टू बुक्स अ मंथ. एंड साथ साथ आई ट्राई टू रीड अबाउट 6 to 7 कंपनीज अ मंथ. फिर वहां से मैं रिवर्स इंजीनियर करता हूँ कि मेरे को दिन में कितना टाइम स्पेंड करना पड़ता है. सो आई थिंक अगर एक डेडिकेटेड एफर्ट of 4 hours or to 4.5 hours is more than enough without your phone. बिना फोन को देखे, बिना डिस्ट्रैक्शंस को देखे,
4-4.5 घंटे का अगर आप डेडिकेटेड एफर्ट देते हैं, सो आई थिंक इन एन एंटायर डे दैट इज मोर देन इनफ, क्योंकि 4-4.5 घंटे में आप काफी चीजें कवर कर सकते हैं। तो मेरा डे रूटीन क्या रहता है, तो बेसिकली आई वेक अप अराउंड 9:30 और 10 AM। तो उठते ही आई लाइक टू रीड अ बुक, एंड साथ साथ उसके बाद लाइक 11-11:30 या फिर 12 के आसपास आई लाइक टू वर्कआउट अ लॉट। तो साथ साथ वो करता हूँ। एंड अभी पीछे 1 महीने से बनता वर्कआउट, क्योंकि 2 वैक्सीन के शॉट्स लगे थे, तो उससे थोड़ी बीच में वीकनेस भी थी। बट आई थिंक वापस मैं इस रूटीन में आ रहा हूँ। एंड साथ साथ उसके बाद कभी कभी तो बीच में जब आपके पास टाइम आता है, तो यहाँ तो आई गो टू माई ऑफिस। तो ऑफिस मैंने मैंने एक लाइब्रेरी बना रखी है, जहाँ पे मैं बैठ के बुक्स पढ़ता हूँ। एंड वहाँ पे काफी एम्प्टी रहते हैं, तो वहाँ पे कोई और आता नहीं है उस टाइम पे। तो वहाँ पे 4-4.5 घंटे मेरे को आराम से मिल जाते हैं। देन शाम के आसपास आई गो आउट टू साइकिल और वॉक। तो या तो मैं साइकिलिंग करता हूँ या तो मैं वॉक करता हूँ। तो वो मेरे को अपने थॉट्स को क्लियर करने में काफी हेल्प करती है। एंड देन रात को कभी कभी बुक रीड कर लेता हूँ, या फिर कोई इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्रीज देखने की ट्राई करता हूँ। इन साथ साथ स्टूडेंट्स की जितनी भी ईमेल्स है उनको रिप्लाई करता हूँ। आई थिंक इट टेक्स मी 45 मिनट्स, 60 मिनट्स, समटाइम्स 80 मिनट्स टू रिप्लाई टू ऑल द ईमेल्स। तो आई थिंक मेरे वर्क डेज 5.5-6 घंटे के आसपास ही रहते हैं। बट इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जब आप रिवर्स इंजीनियर कर रहे हैं अपने अपने एंड गोल को, तो उस टाइम पे आपको ऐसे रिवर्स इंजीनियर करना है कि आप भी क्यूरियस रहे पूरे टाइम में, आप भी नई नई चीजें सीखते रहे। तो आई थिंक दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्योंकि लाइक सम ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टर्स दैट आई हैव सीन, जो 40-50 साल के हैं, आज की एज पे भी वो इतने उतनी उस एज पे भी उतने क्यूरियस हैं जितना बच्चे मतलब 9 या 10 ईयर ओल्ड बच्चे होते हैं। So I think curiosity is something which you have to like sharpen throughout your life. आपको curious से curious होना है, right? Right. So NGL Finechem, Tejas Network, Heikel Man. हाँ, so Aruben Heikel Management Quality. So again, what I perceive investing to be is a probabilistic exercise. कि इन्वेस्टिंग एक प्रोबेबिलिस्टिक एक्टिविटी है। तो आई थिंक काफी लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग में एवरीथिंग इज हार्ड साइंसेस, क्योंकि शायद से वो चीज नहीं हो सकती। तो जब आपके ऑड्स फेवर में है तब आपको चेंज कर जाना चाहिए। जैसे हाइकल के अंदर 2019 में डिस्क्लोजर्स नहीं थे, राइट? सो मेरे उस पॉइंट ऑफ व्यू में अब लाइक 2019 तक मेरा ये व्यू था कि कंपनी डिस्क्लोज नहीं करती। देन 2020 में डिस्क्लोजर्स इंप्रूव हो गए 2020 के अंदर, तो मैनेजमेंट क्वालिटी मेरी ओपिनियन के अंदर इंप्रूव हो गई। सो दीज थिंग्स कीप इवॉल्विंग। तो आई थिंक ये आपको चीज अपने दिमाग से निकालनी पड़ेगी। अगर ये कोई चीज इवॉल्व कर रही है तो आपको भी चेंज करना चाहिए। तो मैंने हाइकल में ऑलरेडी 2-3 साल से पढ़ के बैठा हुआ, तो मैं बस ये इन चीजों की वेट करता हूँ बिजनेस के अंदर, अगर ऐसा कुछ हो सके तो देन आई कैन बाय। सो हाइकल इज समथिंग विच अगेन एज अ डिस्क्लोजर वी ओन, सो समवेयर क्लोज टू 4,000 करोड़, 4,500 करोड़ टाइप्स market cap, like I think 4,000 crore के आसपास is the time we typically got into the company, 3,500 to 4,000 crore में. So I think whenever facts change, I change my mind. What do you do, right? So when facts change, I change my mind. What do you do? So that is the thing which you have to realize. See, IRCTC or any government linked companies, I prefer not to own because regulation इतना होता है, तो मेरे को ऐसी companies में ना मजा नहीं आता ज्यादा, क्योंकि आई प्रेफर स्लीप ओवर रेगुलेशन, कि कुछ ऐसा खराब ही ना हो जाए, राइट? So I'm unable to spend time on research. So Crime Master has a question. So will your course help? See, Crime Master. So again, as a see, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो if you ask a barber for a haircut, he will always say get a haircut. So again, जो webinars, I think आपके लिए webinars can be very very helpful. तो जितने sectoral analysis है, close to अभी तक we might have covered 25-30 companies in all the sectoral analysis. तो आई थिंक क्लोज टू मे बी 25-30 आवर्स के वेबिनार्स होंगे अभी तक के। तो पर अगर आप नहीं डिवोट कर पा रहे टाइम रिसर्च के लिए, अगर आपको नहीं डिवोट करना है, तो बेस्ट है कि इंडेक्स फंड लेके बैठ जाओ। डू एन SIP इन एन इंडेक्स फंड, और डू एन SIP इन अ गुड म्यूचुअल फंड लाइक PPFAS।
सो अगेन नॉट एडवाइस कि आप पीपीएफएस में करें, बट पीपीएफएस मेरे को काफी अच्छा लगता है पर्सनली। पीपीएफएस भी अच्छा लगता है, यूटीआई निफ्टी इंडेक्स फंड भी अच्छा लगता है, एंड आई ट्राई टू कीप माई इन्वेस्टिंग लाइफ वेरी सिंपल। मैं खुद का मेरा पोर्टफोलियो है 13 to 15 स्टॉक्स का। देन मैं पीपीएफएस एंड जो निफ्टी इंडेक्स है इसमें मैं साथ साथ बहुत मिनिमल अमाउंट इन्वेस्ट करता हूँ, देखने के लिए कि मेरा जो पोर्टफोलियो है इन दोनों को बीट कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो अभी तक तो हम इन दोनों को बीट कर पा रहे हैं आराम से। तो कभी अगर ये प्रॉब्लम होती है कि हम बीट नहीं कर पा रहे, तो शायद से 3-4 साल के लिए हम अगर बीट नहीं कर पाते तो शायद से हमें खुद ही शिफ्ट होना पड़ेगा निफ्टी इंडेक्स और पीपीएफएस में। पर अभी तक तो आउटकम इज गुड। बट फैमिली में जो मेंबर्स हैं जो काफी मेरे रिस्क एवर्स हैं, तो मैं एसआईपी ऑन कर रखी है निफ्टी इंडेक्स में, एंड साथ साथ जो पीपीएफएस है उसके अंदर, क्योंकि वो बहुत रिस्क एवर्स है, वो डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टिंग करना ही नहीं चाहते। एक्चुअली में वो कर तो इनडायरेक्टली भी रहे हैं, बट उनके लिए वो बेटर रहता है क्योंकि जो नैव है वो कम फ्लक्चुएट करती है म्यूचुअल फंड्स की। Your view on InSwift Labs selling API business to PI Industry. So Manish, ट्यूसडे को I've covered this. On Tuesday एक वीडियो हम रिलीज कर रहे हैं PI की, लॉरस की एंड दीपक नाइट्राइट की। So just as a surprise, I wanted to release this video, तो आप ट्यूसडे को देख सकते हैं। Right. So just Adish has a question on international companies, Indian companies, key challenges in studying them, accounting, software, ये सब। So I think international companies के truth to be told disclosures बहुत better है इंडियन कंपनीज से। माने वो तो इन्वेस्टर डे प्रेजेंटेशंस करते हैं जिसमें वो एक एक घंटा लगा देते हैं इन्वेस्टर्स के साथ। तो आई थिंक आप इन्फॉर्मेशन ढूंढने निकलेंगे तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन्वेस्टर्स के साथ। तो आई थिंक आप इन्फॉर्मेशन ढूंढने निकलेंगे तो आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो आई थिंक इंटरनेशनल कंपनीज के डिस्क्लोजर्स आर वे बेटर देन इंडियन कंपनीज। Ease My Trip is something which we do not own or haven't studied. So जब तक मैं उसको पढ़ता नहीं तब तक मैं उस पर अपना व्यू नहीं दे सकता आपको। तो आई थिंक लाइक अभी फिलहाल हमने नहीं पढ़ा, राइट। सो समवन हैज अ क्वेश्चन, इंटरनेट इंडियन स्टार्टअप्स एंड देयर वैल्यूएशन थॉट्स। तो आप लोगों ने मुझसे सबने बोला कि आपने जोमेटो की वीडियो नहीं बनाई, आईपीओ की वीडियो आनी चाहिए थी जोमेटो पे। बट मैं तब तक आपके लिए वीडियो नहीं बनाऊंगा जब तक मैं पूरे इंटरनेशनल पीओस को ना पढ़ लूं, जब तक मैं यहाँ तक जोमेटो का जो कंपेटिटर है जो कंपेटिटर है जोमेटो का स्विगी उसको ना पढ़ लूं, सबके फाइनेंशियल्स ना कंपेयर कर लूं, साथ साथ चाइनीज की जो एक कंपनी मेट वन उसको ना पढ़ लूं। तो आई थिंक मैं आपके लिए पूरे सेक्टर की वीडियो बनाऊंगा फूड डिलीवरी की, और एक ही बार ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि आपके लिए नेक्स्ट 4 to 5 ईयर्स का काम हो जाए, कि पूरा सेक्टर की आप जो एवोल्यूशन आप ट्रैक कर सकते हैं। आईपीओ की वीडियो सस्ता काम हम लोग से नहीं होता कि हम 10-11 मिनट की वीडियो आपको बना के देते। वी विल ट्रूली ट्राई टू एजुकेट यू बिकॉज दैट हैज बीन द पर्पस ऑफ आवर चैनल सिंस द डे वन। अगर मैं खुद को एजुकेट नहीं कर पा रहा कि आपके लिए 10-11 मिनट की वीडियो बना देता हूँ, तो आई थिंक मैं अपना जो मोटो है उसी को फेल कर जाऊंगा। 10-11 मिनट की वीडियो मैं आपके लिए कभी भी बना सकता हूँ, बट आप कुछ सोचो मैं नहीं बनाता, क्योंकि आई वॉन्ट टू गिव यू डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ताकि आप खुद आप सीख पाए। कुछ ना कुछ आप हमारी वीडियो देख के हमेशा आप सीखेंगे कि कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग है। आई थिंक फूड डिलीवरी सेक्टर पे इंटायर सेक्टोरल एनालिसिस विल कम सून ऑन द यूट्यूब चैनल। राइट। हाँ, सो गुरवीर हैज अ क्वेश्चन ऑन न्यूलैंड लैब। सो 36% प्रमोटर होल्डिंग, मैं इतना वो अभी मैं इतना रेड फ्लैग नहीं समझता। एपीएल अपोलो में भी आई थिंक 30-35% प्रमोटर होल्डिंग थी, 36-37% व्हेन वी वर देयर, तो आज शायद से और भी कम हो गई है। तो अगर बिजनेस इज डूइंग गुड तो प्रमोटर होल्डिंग विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट न्यूलैंड लैब्स में माय कंसर्न स्टेम्स फ्रॉम कि अगर उसमें मार्जिन वॉलिटिलिटी रही तो वो एक मेरे रिस्क सोर्स ऑफ रिस्क रहेगा। तो अगर वो मार्जिन वॉलिटिलिटी नहीं खत्म कर पाते तो आई थिंक मेरे एंटी थीसिस पॉइंट या पॉइंट ऑफ सेलिंग ही वही होएगा उस बिजनेस के अंदर, कि अगर इसके अंदर मार्जिन वॉलिटिलिटी रहती है तो मैं उस बिजनेस के अंदर ज्यादा दिन नहीं रह पाऊंगा। तो मेरी थीसिस उसके अंदर टूट जाएगी, क्योंकि मेरे पास और भी अच्छे बिजनेसेस है, हाइकल टाइप बिजनेसेस भी है जहाँ पे मार्जिन इतने वॉलेटाइल नहीं रहेंगे एज कम्पेयर टू न्यूलैंड। तो इवन दो बिजनेस अच्छा है, इवन दो यूएस एफडीए कोई आज तक खराब नहीं हुआ, हाइकल में भी नहीं हुआ, तो पर मेरे लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी कि एक बिजनेस वॉलेटाइल है काफी ज्यादा मार्जिन में,
but whereas दूसरा business is guiding for margin expansion. So next 8 quarters में ही मेरे को ये चीज पता लग जाएगी, right? So next 8 quarters में ही मेरे को ये चीज पता लग जाएगी whether I continue owning Newland Labs or not, right? So R&D capitalization is a question by Anurag Shukla. So I think that is typically not a fraud, R&D capitalization, but it is an aggressive accounting policy. So something like Alembic Pharma is basically capitalizing the R&D expenditure on the balance sheet. So Alembic Pharma तो हम लोग वैसे ही नहीं देखते क्योंकि उसके अंदर हमें लगता है कि अगर प्राइस इरोजन हो गया यूएस में हमेशा प्रॉब्लम आ सकती है, इवन दो अब ये बहुत सरप्राइजिंग चीज है, प्रॉफिट्स बिजनेस ने ग्रो करे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट बिजनेस को कभी मल्टीपल नहीं मिला क्योंकि मार्केट हमेशा 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 जहाँ पे अनसर्टेनिटी ऑफ कैश फ्लोज रहती है, जहाँ पे प्राइस इरोजन की अनसर्टेनिटी रहती है, या जहाँ पे ऐसी कुछ चीज हो रही होती है तो मार्केट वैल्यूएशन नहीं देती. तो इस वजह से इवन दो सुपर प्रमोटर ग्रुप है, बट आई थिंक R&D कैपिटलाइजेशन अग्रेसिव अकाउंटिंग है, बट आई वुड नेसेसरली कॉल इट अ फ्रॉड, बट इट्स अ पार्ट ऑफ अग्रेसिव अकाउंटिंग. Right. Right. So I'll just take 5 more questions, and I think I had a superb session with all of you today. So IGL पे LTTS, हाँ LTTS स्वप्नेश प्रॉब्लम इसकी अब ये टाटा एलेक्सी LTTS या KPIT हो गया, these are cyclical businesses. Do not let someone else tell you that these are structural businesses. These are shallow cyclical type businesses. इनमें लॉन्ग टर्म ऑर्डरिंग होती है. तो LTTS फिलहाल अप साइकिल में एंटर कर रहा है, नेक्स्ट 2-3 years अप साइकिल रहेगी. Valuation call, whether you're comfortable at this multiple that you have to take, but business wise this has just entered the up cycle for next 2-3 years. So but Tata Elxsi मेरे व्यू में LTTS से थोड़ा सुपीरियर बिजनेस है, क्योंकि LTTS में सिक्लिकल एलिमेंट्स काफी है, पर LTTS जस्ट अप साइकिल एंटर करा है, पर कैपेबिलिटीज में LTTS टाटा एलेक्सी और KPIT से बेटर. KPIT तो डीप सिक्लिकल है इन माय व्यू, क्योंकि वो ऑटो सेक्टर से काफी लिंक्ड है. तो जब भी ऑटो मेजर्स अपने R&D कट करते हैं या ये सब करते हैं तो इन बिजनेस का मल्टीपल कोलैप्स हो जाता है. टाटा एलेक्सी 15 की पी पे होता था एक टाइम पे जब उनका मल्टीपल कोलैप्स कर गया था. तो मल्टीपल कॉन्ट्रैक्शन रिस्क जरूर है यहाँ पे इस टाइम पे, अगर थोड़ी सी भी कॉन्ट्रैक्शन आती है. आई थिंक नेक्स्ट 2 years के लिए ऑल दीज बिजनेसेस हैव एंटर्ड एन अप साइकिल. तो थोड़ा ध्यान रखना, अगर कोई अच्छी चीज लगती है तो देन दैट्स अ कॉल दैट यू हैव टू टेक. Lasa Super Generics I am not interested in, so I think उसका आपको डीमर्जर पढ़ना चाहिए ओमकारा स्पेशलिटी एंड लासा सुपर जेनेरिक्स का. सो जस्ट एज अ डिस्क्लोजर, नथिंग अगेंस्ट एनीवन, बट हम लोगों को अच्छा नहीं लगता. राइट. So just taking 3 more questions. So Glenmark Life Sciences on API CDMO peptide. So can be a good company, Glenmark Life Sciences, but I never like the standalone listed entity of Glenmark. तो शायद से API वाला यूनिट मेरे लिए लाइक करना मुश्किल है. So again nothing against anyone. So even though business के margins अच्छे हैं, आपको खुद का एक बार पढ़ना चाहिए, उनका जो DRHP आपको पढ़ना चाहिए अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो. So this is something which I haven't applied for. So again, you don't have to take it as a recommendation. Right. So NGL Finechem is a good company यार, मतलब एनिमल फार्मा में तो मैंने कवर भी करा था सीक्वेंट के साथ ये. So I think I've covered this company like all in January, almost 7 months ago almost अब तो. तो अब उसमें आप देख सकते हैं. तो आई थिंक इट्स अ गुड कंपनी, इट्स अ नीश कंपनी, बट इट इज अ कंपनी इन अनरेगुलेटेड मार्केट्स. वहाँ पे ये कॉस्ट लीडर है, बट फिलहाल आई थिंक लाइक थोड़ा सा मल्टीपल हैज बिकम एक्सपेंसिव करंटली. तो आई थिंक थोड़ा सा मल्टीपल हैज बिकम एक्सपेंसिव. Otherwise, it's a fantastically run business by a very good promoter. Broking stocks are cyclical.
broking are cyclical companies. So Angel Broking, ICICI Securities, these are cyclical companies. So जब भी थोड़ा सा bear market आने दो, just look at how the multiple goes. I think even though they have done well, कि काफी customers acquire करे, but I think अगर एक बारी volumes गई नहीं, तो these stocks just collapse like a brick. तो इस टाइम ऑफ द साइकिल में मैं शायद से नहीं लूंगा ब्रोकिंग कंपनीज, शायद से ऐसे आई थिंक इस पॉइंट ऑफ द साइकिल में मैं नहीं लूंगा एक्चुअली. सो अगेन so Udita, Jubilant Pharma recently had some US FDA issues, and secondly जो उनका रेडियो फार्मा बिजनेस है that is loss making right now, even though उसमें एंट्री बैरियर्स है, but वो लॉस मेकिंग चला गया because of COVID and everything. So I think it is like a mixture of too many like too many different types of food categories. So उसमें नॉर्थ इंडियन फूड भी है, साउथ इंडियन फूड भी है, फिर like इंटरनेशनल फूड भी है, कॉन्टिनेंटल फूड भी है, सब भी है. सो आई थिंक मार्केट वैल्यूज फोकस, यहाँ पे फोकस नहीं है इस टाइम पे. अगर इसमें सीडीएम और एपीआई बिजनेस डीमर्ज हो जाता है, आई विल डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस बिजनेस. पर इस टाइम पे इस फोकस नहीं है, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है. बट आई थिंक ग्रुप अच्छा है, ग्रुप को पता है कि हमें वैल्यू कैसे क्रिएट करें. इंग्रीविया में करी उन्होंने, जुबिलेंट फूड वर्क्स में करी, तो ग्रुप को वैल्यू क्रिएट करना आता है. तो आई थिंक सूनर और लेटर हम डीमर्जर देखेंगे जुबिलेंट फार्मोवा में. आई थिंक सेपरेट सब्सिडरी भी बनाई है इन्होंने, पर आई थिंक 2-3 years डाउन द लाइन इसमें पक्की बात है डीमर्जर होएगा ही होएगा, क्योंकि ग्रुप इज अ वेरी स्मार्ट ग्रुप, दे नो हाउ टू क्रिएट वैल्यू. Right. So just taking 2 more questions before moving forward. Akshay, Mastech analysis is coming in next 3-4 weeks. So this month you'll find an analysis on Mastech, right? So I think last 2 questions. Equitas merger. So Equitas Holdings is something like which is interesting, and वहाँ पे arbitrage opportunity भी है. So that is something that you can read a lot. Right. So I think just taking the last question is on Subex. I do not follow. India Mart seems interesting, but again I think different opportunities वहाँ पे available है. So I think like internet plays और भी अच्छे available है. Thematic basically you can better to create a basket bet in your own portfolio. Thematic mutual funds I do not like. Do not go for thematic themes, क्योंकि बास्केट बेट में एटलीस्ट बेटर क्या रहता है कि आप खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से 3-4 अच्छी कंपनी दे सकते हैं. थीमेटिक में इट बिकम्स डिफिकल्ट बिकॉज वो तो आप सेक्टर ही खरीद रहे एक तरीके का. तो बेटर कि आप एक तरीके की जो बास्केट अप्रोच है वही लेके चले, इफ समथिंग इज जस्ट आउट ऑफ योर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस. एंड अगर नहीं संभाला तो लेना ही क्यों है, राइट? लेट इट बी. अगर सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस से बाहर है, you can like you can find opportunities all the time in your own circle of competence. हाँ, नेक्स्ट वीक वी आर कमिंग आउट विद 3 वीडियोस. तो कभी कभी 2 वीडियो, कभी कभी 1 वीडियो, कभी कभी 3 वीडियोस. तो है क्या कि टाइम बहुत लगता है यार, मतलब ऑनेस्टली, मतलब मैं आपके साथ ना कुछ ऐसी चीज शेयर नहीं कर सकता जो मैं खुद नहीं कंज्यूम करूंगा. तो ये मेरा रूल है, हम लोगों का यहाँ पे रूल है कि वी विल ओनली शेयर विद यू व्हाट वी वांट टू कंज्यूम एट आवर ओन एंड. Just taking the last question. Just taking the last question. Someone has asked, can you please share your investing journey? So this is a video जो after 100K subscribers we'll do. So ये मैंने प्लान कर रखा था काफी टाइम से कि if we reach 100K, तो जब हमारे 2-3 हजार सब्सक्राइबर होते थे तब तो मेरे को पता भी नहीं था कि हम 100K पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे. पोस्ट 100K दिस वीडियो विल कम ऑन द चैनल. सो ये वीडियो हमारा बनाने का डिसीजन है कि ये वीडियो आएगी, राइट? So I think thank you so much for joining us. अगर मैं किसी का क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाया बिकॉज क्वेश्चन स्क्रीन इज मूविंग सो फास्ट, ऐसा नहीं है कि मैं आंसर नहीं करना चाहता, बट लाइक लाइव Q&A सेशन नेक्स्ट मतलब अगस्त के अंदर भी हम लोग एक और करेंगे. तो ये लाइव Q&A सेशंस और भी हम जो फ्रीक्वेंटली आप लोगों के साथ करेंगे. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. आई होप आपको इस सेशन में वैल्यू मिली, एंड जितनी भी बुक्स हैं आप ये सारी देख सकते हैं. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस.
Hope to see you in the next business analysis of SOIC. So Laurus Labs, Deepak Nitrite and Deepak Nitrite, Laurus and PI के interesting developments बारे में. Then उसके बाद आ रही है Acrisil पे. Then top 10 large cap mooted companies पे. Thank you for joining us. Hope to see you in the next session.